Jai Gurudev beta. In last class we had learned up to the multiplication of page number 77 it was given. Okay, now in page number 79 to 80 here tables are given, and earlier also I told you that you will revise those tables. Okay beta, now today onwards we are going to learn beta about the properties. And what are the properties of multiplication? It is given in your page number 81. I am just marking and you will note down those properties in your copy also. Okay, see that property 1 with example you will note down, property 2 will example you will note down, property 3 will example you will note down, and property 4 will example you will note down. यहाँ से लेकर यहाँ तक का इतना पार्ट आपको नोट डाउन करना है in your copy. Okay, and now I am explaining it. Whatever examples are given, those examples also you will note down in your copy. Now see that the product of any number with 1, the number itself, means if we will multiply any number with 1, what will come? The number itself. जिस नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जैसे हमने करा 8 1 जा 8, तो what will come? 8. तो किसको 8 से हम 8 को हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा, और 8 ही आ रहा है. सो ऐसे देखो 23 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 23. 32 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे तो क्या आएगा? 32. ओके, एंड 3 1 जा 3. इट मीन्स इफ वी विल मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 1, द रिजल्ट विल कम द नंबर इटसेल्फ. मतलब वही नंबर अपने आप में रिजल्ट बनकर आएगा. प्रॉपर्टी 2 है, इफ वी विल मल्टीप्लाई एनी नंबर विद 0, द रिजल्ट विल ऑलवेज बी 0. हम किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आएगा? रिजल्ट क्या होगा उसका? 0 आएगा. ठीक है, 3 इंटू 0 0. 67 मीन्स as much as greater number you can take, but if you will multiply it with by 0, the result will be 0. Third है बेटा most important property, that is commutative property. All these 4 results are very important for you. Okay, the product of two numbers remains the same if the order is changed. इसका क्या मतलब है कि अगर हम दो नंबर हमने लिए और हमने उनका ऑर्डर चेंज भी कर दिया तो भी उनका रिजल्ट सेम ही आएगा. देखो 3 4 जा 12, 4 3 जा 12. ओके, तो 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 4 इंटू 3. 3 इंटू 4 भी 12 आया, 4 इंटू 3 भी 12 आया. तो इसका मतलब ये कि दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. 7 6 जा 42, 6 7 जा 42. ओके, तो 7 इंटू 6 इज इक्वल टू 6 इंटू 7. दोनों का रिजल्ट कितना आया बेटा? 42. एनी नंबर यू कैन टेक. 8 इंटू 3, वन मोर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग. 8 इंटू 3, 8 3 जा 24. Now see that 3 into 8, 8 3 ja 24. Okay, then also 8 into 3 is equal to 3 into 8 is equal to, in both the condition what it will come? 24. Okay बच्चे, now just see is example is given, and that is very, actually this is example or your exercise also. Okay, see that 2 into 8 into 3. 2 into 8 कितना होगा बच्चे? 2 into 8, 8 2 जा 16. 16 into 3, how much it will come? 48. One example we have given. Okay, now we are moving to the next one, है ना. Now see that where we are going to move. See बेटा, 4 into 5 into 6 is equal to 4 into, देखो यहाँ पर क्या आएगा? 4 into 5 into 6. See that बेटा, 4 into 5 into 6 is equal to 4 into, अब 5 into 6, 5 6 जा 30. Okay, 5 6 ja 30. Now multiply, what result will come? 4 3 ja 12, 120 it will come. What it will come? 120. So in both the ways, whether we will multiply from here or we will multiply these two, in both the condition result will come equal to 120. Okay, now see that again, ये 6 है तो यहाँ पर क्या आएगा? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आएगा. 2 7 जा 2 7 जा कितना होता है बेटा? 14. यहाँ पर लिख दो 14. ओके, अब इंटू 6 इज इक्वल टू, अब इनको मल्टीप्लाई करके लिखो. 6 4 जा 24. अलग से मल्टीप्लाई करो. इफ़ यू आर नॉट एबल टू डू, यू कैन मल्टीप्लाई हियर 14 इंटू 6. ओके, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 6 1 जा 6 और 2 8. हाउ मच इट विल कम बेटा? 84. हाउ मच इट विल कम? 84. ओके, अब यहाँ देखो 1 1 10 इंटू 32 इंटू 56. अब इसने क्या लिखा है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Okay, last property is associative property. Now I am going to tell you that property. From not here up to here you will note down up to examples.
कहाँ तक नोट डाउन करेंगे आप इसमें? प्रॉपर्टी 4 यहाँ तक का नोट डाउन करेंगे पहले अपनी कॉपी में, एंड देन यू विल प्रोसीड फ्रॉम हियर। ओके, ये पूरा पार्ट आपको नोट डाउन करना है एज इट इज़ फ्रॉम योर बुक। ओके, इन विच पेज नंबर इट इज़ बेटा? इट इज़ ऑन पेज नंबर 81। ऑन विच पेज नंबर इट इज़ गिवन? पेज नंबर 81। नाउ सी दैट क्या है, अब यहाँ देखो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेज दैट कि इफ़ 2 into 3 अगर ब्रैकेट में हो और into 4 हो बाहर से, ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 3 2 जा 6 into 4 कितना आ जाएगा? 24। अब की बार हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। ऑर्डर चेंज मीन्स हमने 2 को अलग कर दिया है और ब्रैकेट में कौन कौन से नंबर ले लिए? 3 into 4 लिए, तो भी मल्टीप्लिकेशन यही आएगा। सी दैट 2 into 3 4 जा 12, तो 12 2 जा 24, तो कितना आ जाएगा? तो भी 24 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि हम इस प्रॉपर्टी को कैसे लिख सकते हैं? देखो, हम इसको प्रॉपर्टी को इस तरीके से लिख सकते हैं कि अगर ए कोई नंबर है, ठीक है, इनटू ब्रैकेट में कौन से नंबर हैं? बी इंटू सी है। ये ए बी सी कोई 3 डिफरेंट नंबर हैं सपोज। ओके, तो अब अगर हम क्या कर लें? ए इंटू बी को ब्रैकेट में ले लें और इंटू सी कर लें, यानी एक नंबर को बाहर कर दें, आपकी बार ऑर्डर चेंज कर दें। इफ़ वी विल चेंज द ऑर्डर ऑफ द 3 नंबर्स इन द मल्टीप्लिकेशन, देन बोथ द रिजल्ट विल बी इक्वल। चाहे हम किसी भी तरीके से मल्टीप्लाई करें, देयर रिजल्ट विल बी इक्वल, एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? आपकी एसोसिएटिव। दीज 4 प्रॉपर्टी अगेन आई एम सेइंग यू, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो बी फोकस्ड ऑन इट। ओके, इन पर आपको फोकस करना है और आपको इनको नोट डाउन करके अपनी कॉपी पर भी लिखना है, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, ठीक है, अब यहाँ देखो 110 into 32 into 56 ये है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग क्या होगा कि 110 और 32 एक ब्रैकेट में आ जाएंगे, तो बाहर कौन सा चला जाएगा बेटा? 56 चला जाएगा। बाहर कौन सा रह जाएगा? 56। अभी हमने आपको यहाँ करके बताया है ना ये, ठीक है। नाउ सी दैट 2 into 4 into 8, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा? अब की बार 2 into 4 किस में आ जाएंगे? ब्रैकेट में आ जाएंगे, और बाहर कौन रह जाएगा? अगले वाले में कौन चला जाएगा? 8 चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो 3 into 6 into 4, ठीक है। अब इसने यहाँ पर क्या करा है? देखो, अब की बार इसने क्या करा है? यहाँ 24 कर दिया, यानी 6 4 जा 24। इन दोनों को तो मल्टीप्लाई हो गया, फिर कौन रह गया इसमें? 3 रह गया। कौन रह गया बच्चे इसमें? 3 रह गया, ठीक है। अब 3 4 जा, अब 24 और 3 को मल्टीप्लाई करो अलग से, तब यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा दैट यू विल राइट दैट रिजल्ट हियर। सी दैट नाउ 3 4 जा 12, कैरी कितना हुआ? 1, 3 2 जा 6 और 1 कितना हो गया बेटा? 7। सो व्हाट विल योर रिजल्ट? 72। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट दिस वन ऑल्सो इन योर कॉपी। आप इसको पहले बुक में कंप्लीट करेंगे एंड देन यू विल कंप्लीट इन योर कॉपी। एंड हाउ यू विल कंप्लीट? फर्स्ट यू विल सी द वीडियो एंड देन विदाउट सीइंग द वीडियो यू जस्ट कंप्लीट देम। आप जब भी करते हो तो आप बिना वीडियो देखे से करेंगे तो आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। पहले आप वीडियो देख लो, आपको समझ में आ गया, फिर आप अपने आप से करो। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन पेज। ओके, सी दैट बेटा, दैट इज पेज नंबर 82। पेज नंबर 82। अब आप यहाँ देखो, अब आपको मल्टीप्लाई करने के बाद में कितने टेंस हैं, कितने वंस हैं, वो लिखना है इसमें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए, सी द एग्जाम्पल हियर। ओके, 2 into 10 कितना हुआ? 20। कितने वंस हैं इसमें? 2, ये वंस प्लेस है, ठीक है, ये वंस प्लेस है, और ये कितना है? टेंस प्लेस है, ठीक है। अब नाउ सी दैट किस किस को मल्टीप्लाई करा आपने? 2 वंस को मल्टीप्लाई करा और 1 10 को मल्टीप्लाई करा, तो आपको क्या मिला? क्या मिला आपको? 2 10 मिला। क्या मिला आपको? 2 10। 20 मीन्स 2 10। अब देखो 4 वंस को मल्टीप्लाई करा और 1 10 को मल्टीप्लाई, 40, यानी 4 1 कितना मिला आपको? यहाँ पर कितने मिले बच्चे? 4 10 मिले आपको। 40 मिला ना, 4 10 वी कैन, यू नो ना, 40 मीन्स 4 10, 4 10 जा 40, है ना। सी दैट 13 into 10 मीन्स 13 वंस है। व्हाट इज दिस? 13 वंस है। 1 1 को अगर हम 13 टाइम लिखें तो तब 13 बनेगा ना, 1 1 1 1 13 टाइम, तो 13 वंस है। मल्टीप्लाइड बाय 10 टेंस, मल्टीप्लाइड बाय 1 10th है, ये गलत लिखा है इसमें, 1 10th होना चाहिए। तो व्हाट यू विल गेट? 130 टेंस। कितने मिल गए आपको? 130 टेंस। ओके, नाउ जस्ट सी हियर।
beta here it is written wrong, see that. Okay, you just do according to yourself. See, 13 into 1 multiplied by 1/10, 13 ones और 1/10 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर क्या आएगा बेटा, 130 आया ना, तो 130 को आप क्या लिखेंगे, 13/10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको, 13/10। ओके, जैसे ये 2/10 बना था, 2/10 मीन्स 2 into 10, तो 130 into 10 करेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, सो इट इज़ रिटन रॉन्ग हियर। ओके, तो आप क्या लिखेंगे इसको, यू जस्ट मेक द करेक्शन, 13/10। व्हाट विल बी योर आंसर, 13/10। ओके, नाउ सी हियर इन दिस वे, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है। 3 into 60, तो 3 कितने हैं, ये 3 ones हैं। 3 into कितने 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, ये 6/10 से। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये 6/10 से। तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, 6 3 जा 18, 180 आएगा ना। 180 को का आप क्या लिखोगे, 180 है बेटा, तो 180 में कितने 10 हैं, 180 into 10, नहीं सॉरी 18 into 10, तो तब मिलके 180 आएगा। तो इसका मतलब कितने 10 हैं, ये 18 10 हैं। कितने 10 हैं बच्चे, ये 18 10 हैं। ओके, नाउ जस्ट सी हियर नेक्स्ट वन, नाउ सी दैट बेटा, 4 into 70। तो 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, कितने 10 हैं, ये 7 10 हैं। ठीक है, कितने 10 हैं, ये 7 10 हैं। अब इनको मल्टीप्लाई करो 70 और 4 को, तो कितना आएगा, यू जस्ट मल्टीप्लाई सेपरेटली। ओके, 70 into 4 व्हेन यू विल मल्टीप्लाई करना, इट विल कम बेटा 280। कितना आता है ये, 280। 280 मीन्स हाउ मनी 10s आर देयर, 28 10s, 28 10s। ओके, अब आप यहाँ लिखो 18 10s इज इक्वल टू 180, 28 10s is equal to 280. In this way it will be your answer. Now see that 5 into 80 is equal to 5 into 8 10s. 5 into बेटा 8 10s. Okay, 5 into 8 10s. अब देखो मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया मल्टीप्लाई करने के बाद में, 8 5 जो 40, 400 आंसर इज कमिंग। यू जस्ट मल्टीप्लाई सेपरेटली। तो 400 मीन्स हाउ मनी 10s, यहाँ इस इतना, this will how many 10s, 40 10s, how many 10s, 40 10s। okay, because you will multiply 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, तो 40 10s हो गए। और 40 10s माने 40 को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको, you will multiply 40 by 10, तो 40 if you will multiply 10 then what it will become, 400। okay, so in this way D and E part you will do your homework. D and E is your homework. okay, D and E part is your homework. okay, now come to the page number beta, in this page. okay, that is page number 83, page number beta 83. now see that. okay, 12 into 40 मल्टीप्लाई कर दो। कैसे करोगे, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो पहले। हाउ यू विल मल्टीप्लाई, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, हाउ मच केम, 48। तो 48 के आगे क्या कर दो, ये 0 लगा दो, तो 48 into 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ देखो, इतने जीरो वाले मल्टीप्लिकेशन तो बहुत सिंपल होते हैं, कुछ नहीं करना आपको। आप 15 और 5 को मल्टीप्लाई करो, अलग से कर लो। 15 into 5, 5 5 जा 25, कितना कैरी आया आपका 2, 5 1 जा 5 + 2 7, कितना हो गया 75। ओके, यहाँ पर 75 लिखो। अब हमने ये जीरो तो मल्टीप्लाई करा नहीं था, पुट दिस जीरो हियर, अंडरस्टूड और नॉट। सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट। ओके, रेस्ट थी पार्ट आई एम लीविंग यू बिकॉज ऑल माई चिल्ड्रन दे नो द मल्टीप्लिकेशन, तो वो मल्टीप्लिकेशन जानते हैं। तो C D और E मुझे खुद से करके बताएंगे सब लोग, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे बेटा, पहले 16 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे और जो आएगा उसके आगे जीरो पुट कर देंगे, ठीक है। यू विल पुट जीरो इन फ्रंट ऑफ दैट। तो और आप वो जो मल्टीप्लिकेशन है उसको आप फेयर में ही वहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेना कि क्या आपका मल्टीप्लिकेशन आ रहा है। ओके, सो इन दिस वे यू विल कंप्लीट अप टू द। तो आज का आपको आज मैंने आपको क्या क्या होमवर्क दिया है, मैंने आपको बोला है कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ आज आप समझेंगे मेरे वीडियो को बार बार देखने के बाद में, और ये प्रॉपर्टीज़ आप नोट डाउन करेंगे पहली बार, ठीक है। उसके बाद में ये अपना टेंस
वंस, ये आपने पहले भी पढ़ा है, ठीक है। फिर ये वाली एक्सरसाइज इट वाज द यूज ऑफ फॉर द यूजिंग हाउ टू यूज़ द दीज प्रॉपर्टीज़, है ना, इनका ये यूज़ था। इसमें से मैक्सिमम जो प्रॉपर्टी थी वो मेन थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी पर बेस्ड ये वाली आपकी एक्सरसाइज थी। ये मैंने आपको बता दी कैसे करनी है, ठीक है। आफ्टर दैट बेटा यू विल कंप्लीट दिस वन ऑल्सो, फिल इन द ब्लैंक्स, टेंस एंड वंस, टेंस एंड वंस वाली एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करेंगे। एंड लास्टली यू विल कंप्लीट द प्रोडक्ट, ये वाला फाइंड द प्रोडक्ट, इस वाले पार्ट को आप, ये सी डी और ई पार्ट मैंने आपके लिए छोड़े, आप उसको कंप्लीट करेंगे जैसे मैंने आपको सिखाया है। आप क्या करेंगे, जहाँ आप क्वेश्चन लिखा आपने, ठीक है, फिर उसी के सामने मैं एक करके बता दे रही हूँ आपको, यहाँ एक कॉपी के पीछे कैसे किस तरीके से करना है। यहाँ बुक में तो मैंने आपको समझा दिया है कि हाउ यू विल डू दैट, है ना। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग यू हाउ यू विल डू दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी। ओके, सपोज यू हैव टू गिवन 12 into 40 is given to you. How you will do? You first multiply 12 multiplied by 4. 4 2 ja 8, 4 1 ja 4. Okay, now this put this 0 also. So you will write that 12 into 4 is equal to 480. 40 is equal to 480. This will be your answer. Okay, have you understood beta? See that one more time. 15 into 50 was there ना, तो how you will do that, आप यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 15 into 5, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 1 जा 5 और 2 7, 75 इट हैज़ बिकम। अब आप यहाँ लिखेंगे 7 5 और ये 0 तो हमने मल्टीप्लाई नहीं करा था, सो यू विल पुट 0 हियर ऑल्सो। सो इन दिस वे योर आंसर विल कम। सो इन दिस वे बेटा यू विल मल्टीप्लाई एंड you will complete all these question up to here. Just enough for today beta. In next class we will learn the multiplication of a 2-digit number by a 2-digit number. Till that you will complete here, and thank you and Jai Gurudev to all of you beta. Have a good day to all of you.